آج ہماری اس تفصیلی گفتگو میں ہم زمین کی کچھ ایسی جگہوں پر بات کرنے والے ہیں جو سننے میں بالکل کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتی ہیں۔ ہاں، مطلب ایسی جگہیں جہاں عام طور پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں ہمیشہ اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ انسان آخر ایسی ناقابل یقین جگہوں پر زندہ کیسے رہ لیتا ہے۔ صحیح کہا۔ آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان عظیم قدرتی مشکلات اور انسانی شاہکاروں کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ زمین بہت وسیع ہے اور ہمارے اس گہرے جائزے میں ہم برفانی پہاڑوں کے ٹوٹنے سے لے کر قدیم تہخانوں کے رازوں تک جائیں گے۔ بالکل، اور اس سفر کی بنیاد ہی اس خیال پر قائم ہے کہ زندگی وہاں بھی اپنا راستہ نکال لیتی ہے جہاں بقا بالکل ناممکن لگتی ہے۔ اگر ہم اپنا نظریہ تھوڑا وسیع کریں تو ایسی جگہیں ہیں جہاں انسان اور قدرت کا ملاپ ایک نیا ہی نظام بنا دیتا ہے۔ ہاں، ہماری دنیا صرف اتنی نہیں ہے جتنی ہم اپنے شہروں کی آرام دہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ زمین کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں موسم انتہائی سخت ہے، لیکن وہاں انسانی ہمت نے ایسے نشان چھوڑے ہیں جو صدیوں بعد بھی ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ واقعی، اور اس ہمت کی سب سے دلچسپ مثال میری نظر میں وہ جگہ ہے جسے چاہل برگے کہا جاتا ہے۔ اچھا، چاہل برگے؟ یہ وہی انتہائی قدیم مٹی کا قلعہ ہے نا؟ ہاں بالکل، مڈ فورٹریس۔ اور حیرات کی بات یہ ہے کہ یہ ایک عام سی چیز، یعنی دھوپ میں سکھائی گئی مٹی اور بھوسے سے بنایا گیا ہے۔ مطلب مٹی جیسی کچی چیز سے بننے کے باوجود اس کی 3 گول دائروں میں بنی دیواریں ہیں اور ان کے ساتھ سینکڑوں واچ ٹاورز جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا جو نام ہے 40 مینار، وہ اصل میں اس کی گنتی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ 40 کا ہنسا ایک روحانی اشارہ ہے، یعنی ایک اسپرچول کوڈ۔ اصل منار تو اتنے زیادہ ہیں کہ افق تک پھیلے ہوئے اس سلسلے کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ وہی نا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس دور میں مڈ آرکیٹیکچر کا اپنا ہی ایک عجیب نظام ہوتا تھا۔ لوگوں کے پاس سٹیل یا جدید مشینری تو تھی نہیں۔ بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے مٹی کو اس کے را فارم میں استعمال کرنا سیکھا۔ مٹی اور بھوسے کا یہ ملاپ گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم رہتا ہے، اور جب اس پر مسلسل دھوپ پڑتی ہے تو وقت کے ساتھ یہ پتھر جیسا سخت ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگوں نے اپنی دفاعی حکمت عملی کو صرف فزیکل حفاظت تک محدود نہیں رکھا۔ وہ 40 کا ہنسا دشمن پر ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے تھا کہ یہ قلعہ ناقابل تسخیر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک بہترین سائیکولوجیکل دفاعی نظام تھا یہ۔ اچھا، اس دفاعی حکمت عملی سے اگر ہم تھوڑا جذبات اور تاریخ کی طرف مڑیں تو دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جس سے کسی نے بہت خوبصورتی سے انسانی محبت کا سیاہ دل کہا ہے۔ سیاہ دل؟ یہ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے بیسیلیکا دے سین والنٹینو۔ سننے میں عجیب لگتا ہے کیونکہ سینٹ والنٹائن کو ہم محبت کے عالمی نشان کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ان کی باقیات ایک قدیم رومن قبرستان، ایک نیکروپولس کے بالکل وسط میں تعمیر شدہ اس جگہ پر موجود ہیں۔ اچھا، وہاں؟ ہاں، وہاں پچھلے 1700 سال سے یہ باقیات محفوظ ہیں۔ صحیح، اور وہ ایک انتہائی نم اور ٹھنڈا تہخانہ ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ وقت واقعی منجمد ہو چکا ہے۔ موت کی اس عظیم جگہ پر محبت کا نشان، یہ بہت عجیب تضاد ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا گہرا تضاد ہے۔ ایک مقام جو بنیادی طور پر زوال اور موت کو ظاہر کرتا تھا، وہاں سے ایک ایسی تحریک اٹھی جس نے صدیوں تک لوگوں کو جوڑے رکھا، اور اس نم تہخانے کا موسم اس قدر مخصوص ہے کہ وہاں ایک عجیب سا بایولوجیکل نظام بن چکا ہے۔ بالکل، جس کی وجہ سے وہ باقیات گلنے سڑنے سے بچ گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال فروری کے شروع میں لوگ وہاں اپنے عہد و پیمان کرنے آتے ہیں۔ لوگ موت اور تاریکی کے مرکز پر محبت ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کی ایک زبردست مثال ہے۔ وقت کے منجمد ہونے کی اس کہانی سے نکل کر اب ذرا ایک ایسی جگہ کا رخ کرتے ہیں جہاں وقت تیزی سے پگھل رہا ہے۔ میں اٹلی کے ایلپس میں موجود فیلیریا گلیشیئر کی بات کر رہا ہوں۔ او، فیلیریا گلیشیئر، جسے یورپ کے دل میں ایک چھوٹا شمالی قطب یا منیجیچر آرکٹک سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، تقریباً 8500 فیٹ کی بلندی پر وہاں ایک عظیم چمکتی ہوئی نیلی برف کی دیوار ہے، اور ٹھیک اس کے نیچے ایک ملکی ٹرکویز رنگ کی جھیل موجود ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جھیل قدیم نہیں ہے۔ ہاں، میری معلومات کے مطابق یہ پچھلی صرف چند دہائیوں میں تیزی سے برف پگھلنے کے نتیجے میں بنی ہے۔ صحیح کہا، یہ گلیشیئر صرف ایک خوبصورت منظر نہیں ہے
बल्कि एक खत्म होते हुए निशान यानी वैनिशिंग लैंडमार्क की निशानदेही करता है। ये जो नीली बर्फ हमें नजर आती है, ये हवा के बगैर दबी हुई हजारों साल पुरानी बर्फ होती है, लेकिन अब इसके पतला होने की रफ्तार इंतहाई तेज हो चुकी है। हर साल कई फीट बर्फ गायब हो रही है। जो मंजर आज वहाँ है, शायद आने वाली नस्लें उसे कभी न देख सकें। ये कुदरत की एक टिक टिक करती घड़ी है और वहाँ एक इंतहाई हैरत अंगेज अमल देखने को मिलता है जिसे आइस बर्थिंग कहा जाता है। आइस बर्थिंग मतलब जब अजीम बर्फ के टुकड़े टूटकर गिरते हैं? हाँ, सोचें कि आसपास बिल्कुल खामोशी है और अचानक किसी तोप के गोले दागने जैसी धमाकेदार आवाज आती है। ये वो आवाज होती है जब हजारों साल पुरानी बर्फ सीधा उस टर्कोइज झील में गिरती है। जिंदगी अपना वजूद मेंटेन किए हुए। ज़मीन और इंसानी महारत की अगर मज़ीद बात करें तो इन खरी चट्टानों से याद आया, लैनसेंग रिवर कैनियन के पहाड़ों पर मौजूद मोंग सॉल्ट फील्ड्स भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। अच्छा, मोंग सॉल्ट फील्ड्स, वहाँ जहाँ दस्तारी तरीके से नमक बनाया जा रहा है। हाँ, और वो भी पिछले 1300 साल से। और वहाँ कोई हमवार जमीन नहीं है, बिल्कुल आमूदी चट्टानों के ऊपर लकड़ी के अजीम ढांचे बनाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कशिश शकल के सहारे हवा में लटके हुए हैं। और वो नमक निकालने का अमल जमीन के अंदर मौजूद कुओं से नमकीन पानी निकालकर इन लकड़ी के रास्तों के जरिए ऊंचाई पर बनाई गई क्यारियों तक लाया जाता है, बिना किसी मोटर या जदीद मशीन के। सिर्फ ग्रेविटी का इस्तेमाल है। और यहाँ का एक और दिलचस्प तजाद उनके नमक का रंग है। नदी के एक किनारे पर बिल्कुल चमकता हुआ सफेद नमक बनता है और दूसरी तरफ कुदरती तौर पर हल्का गुलाबी नमक। और सदियों से उन लकड़ी के ढांचों से जो नमकीन पानी टपकता रहा है, उसने नीचे चट्टानों पर स्टैलेक्टाइट यानी झुमारों जैसी अजीम शक्लें बना दी हैं। इस फने तामीर के साथ साथ वहाँ का सामाजी निज़ाम भी लाजवाब है। ख़वातीन उन आमूदी चट्टानों पर पानी और नमक निकालने जैसा सख्त जिस्मानी काम करती हैं। और उसके बाद मर्द घोड़ों और खच्चरों पर उस नमक को लादकर दुश्वार गुजार रास्तों से तिजारत के लिए ले जाते हैं। सही इंसान ने एक खतरनाक ढलवान पर पूरी एक माशियत खड़ी कर दी है। ज़रूरत वाकई मुश्किल तरीन जगहों पर भी इजादात करवा लेती है। बेशक, और जब ज़रूरत और महारत आपस में मिलती है ना, तो कभी कभी शहर के शहर नए रंग में रंग जाते हैं। मिसाल के तौर पर राजस्थान का शहर जौर, जिसे हम सन सिटी या जोधपुर के नाम से जानते हैं। जोधपुर, जहां साल का ज्यादातर हिस्सा शदीद धूप चमकती है। बिल्कुल, लेकिन इस शहर की असली पहचान इसके तंग रास्तों में मौजूद वो नीले रंग के घर हैं। शुरू में ये नीला रंग ब्राह्मण तबके ने इस्तेमाल करना शुरू किया था ताकि शदीद गर्मी और कीड़ों मकोड़ों से बचा जा सके। और वक्त के साथ ये इस पूरे मकाम की पहचान बन गया। जबकि दूसरी तरफ वहाँ की जो शाही इमारतें और किला हैं, वो पीले रंग के सैंडस्टोन से बना है। नीला और पीला रंग आपस में टकराकर बड़ा अजीब सा शहर पैदा करते हैं। सही कहा आपने। ये शहर का फनी खाका इस बात की वाज़े नुमाइंदगी करता है कि मौसम और समाजी दर्जाबंदी यानी कास्ट्स मिलकर कैसे किसी जगह की शक्ल तय करते हैं। समाजी निज़ाम ने सिर्फ लोगों की हैसियत तय नहीं की, बल्कि शहर के विजुअल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी वो नीला रंग सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि कदीम समाजी निज़ाम का अक्स है। और इस शहर पर जो किला मौजूद है, तकरीबन 410 फीट की बुलंदी पर एक खड़ी चट्टान पर, उसके नीचे जो तंग गलियां हैं, वहाँ एक नया ही शहरी इकोसिस्टम बन चुका है। वहाँ इंसान अकेले नहीं बसते। तंगलियों और छतों पर बाजों यानी फैल्कन्स और नीम जंगली बंदरों का राज है। वो सब एक दूसरे की मौजूदगी के आदी हो चुके हैं। अच्छा, बुलंदी और इंसान के कदीम ताल्लुक की बात चली है, तो जमीन पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां बुलंदी को सीधा रूहानियत से जोड़ दिया गया है। इस हवाले से तिब्बत का जुजू टेम्पल बड़ा अहम है। जिजू टेम्पल, हाँ, जो तकरीबन 15,700 फुट की बुलंदी पर एक अकेले लाइमस्टोन के पहाड़ पर लटका हुआ मालूम होता है। ये कदीम बौन मजहब का मंदिर है। वहाँ एक कुदरती आसमानी दरवाजा यानी हेवनली गेट मौजूद है। पहाड़ के दरमियान एक वसी और खुला सुराख जो सदियों से मौसम और चट्टानों के टूटने से बना। जब इसमें से हवा गुजरती है तो उसकी एक अलग ही गूंज होती है। लेकिन आप 15,700 फुट की बुलंदी का तसव्वुर करें, वहाँ ऑक्सीजन सतह समंदर की निस्बत तकरीबन आधी रह जाती है। आम इंसान का सांस लेना दुश्वार होता है। वही तो,
ऐसी जगह पर ईंटों और लकड़ी को ले जाकर मंदिर तामीर करना और फिर सदियों तक उसको महफूज रखना, ये सोच से बाहर की बात लगती है। कोई आम हमवार रास्ते तो हैं नहीं वहाँ, खड़ी चट्टानों पर बनी पुरखतर लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं। और पिछले 3000 साल से मुसलसल लोग वहाँ इबादत के लिए जा रहे हैं। वहाँ छोटे गार हैं जहाँ लोग महीनों तक गहरी खलवत यानी रिट्रीट में रहते हैं। आधी ऑक्सीजन में जहाँ इंसानी जिस्म जल्दी थक जाता है, वहाँ इबादत में मसरूफ रहना और अपने अकायद को 3000 साल तक जिंदा रखना, ये वाकई इंसानी ताकत की सबसे बड़ी मिसाल है। ये साबित करता है कि जब जिस्मानी ताकत रूहानी अकायद से मिलती है तो वो किसी भी बायोलॉजिकल महदूदियत को पीछे छोड़ देती है। और अकायद और कुदरत का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह जुड़े हुए हैं, इसकी एक और बहुत अजीम मिसाल यामरोक लेक है। तिब्बत की मुक़द्दस झील जिसे यामरो, यामसो या मिरर ऑफ द गॉडेस पुकारा जाता है, देवी का आईना। इस झील के पानी का रंग इंतहाई गहरा चमकता हुआ टर्क्वाइज है और इसका साहिल 155 माइल्स तक फैला हुआ है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ है। बिल्कुल। और अगर इसे बुलंदी से देखा जाए तो इसकी शक्ल ऐसी लगती है जैसे कोरल रीफ्स पर कोई बड़ा सा हंस या स्वान तैर रहा है। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी आबी जिंदगी है। हाँ, तहकीक के मुताबिक इस झील में तकरीबन 8 लाख टन मछलियों का जखीरा मौजूद है। 800,000 टन। ये आम हालात में एक बहुत बड़ी कमर्शियल इंडस्ट्री बन सकती थी। लेकिन वहाँ की मुकामी आबादी उन मछलियों को हाथ तक नहीं लगाती, वो उन्हें खाने का तसव्वुर भी नहीं करते। और उसकी वजह कोई हुकूमती कानून या फाइन नहीं है, उसकी वजह उनका सदियों पुराना अकीदा है। उनका मानना है कि ये मछलियाँ रूहों के इस दुनिया से गुजरने और उनकी आखिरी मंजिल का हिस्सा हैं। यानी 8 लाख टन आबी जिंदगी बेखौफ वहाँ तैर रही है, सिर्फ एक मजहबी अकीदे की बदौलत। अगर हम इस पर गौर करें तो जब एनवायरमेंट कंजर्वेशन जैसे अल्फाज वजूद में भी नहीं आए थे, उस वक्त अकायदी कुदरत को बचाने का सबसे मजबूत जरिया थे। जो काम आज हम सख्त कवानीन से करवाते हैं वो वहाँ लोग खुशी खुशी करते हैं। मजहब बजाते खुद नेचर कंजर्वेशन का एक बेहतरीन निज़ाम बन गया हुआ। अच्छा, इस तहफ़्फ़ुज़ से अगर हम आगे बढ़ें तो एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरत ने ज़मीन को तराश कर एक जंगल बना दिया है, जादा अर्थ फॉरेस्ट। हाँ, 13,100 फीट की बुलंदी पर मौजूद ये दुनिया का सबसे वसी मिट्टी का जंगल है। ऐसा नहीं कि वहाँ दरख्त उगते हैं, बल्कि ये अजीम मिट्टी के मीनार और पहाड़ियाँ हैं जो शायद लाखों साल पहले किसी कदीम झील का हिस्सा थे, फिर टेक्टोनिक मूवमेंट से ऊपर आ गए और आज वहाँ बारिश और हवा हर साल उनकी शक्ल बदलती रहती है। और जब धूप इन पर पड़ती है तो इनका रंग कभी पीला, कभी सुर्ख और फिर चांदी जैसा ग्रे हो जाता है। एक अजीब बेजान हरकत करने वाला जंगल। और सबसे हैरानत की बात, इस मिट्टी के जंगल में गुरुजान किंगडम आबाद थी। गुरुजान किंगडम जो 10वीं से 17वीं सदी तक तिब्बत की सबसे बड़ी कदीम राजधानी थी। उन्होंने इस कच्ची मिट्टी के पहाड़ को तराश कर 400 कमरे और 800 गार बनाए थे। और इनका पूरा शहर एक समाजी दर्जाबंदी के तहत था। पहाड़ के निचले हिस्से में आम लोग और किसान थे और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वहाँ बादशाह और शाही खानदान की रिहाइश थी। लेकिन सबसे मुतासिर कुन चीज उन घरों के अंदर की दीवारी मुसव्वरी यानी म्यूरल्स हैं। इन दीवारों पर मुसव्वरों ने सोना, चांदी और कीमती पत्थरों के बुरादे का इस्तेमाल किया था। सोचें, बाहर मिट्टी का धूप से झुलसता जंगल और अंदर कीमती पत्थरों से बनी मुसव्वरी। 1000 साल गुजरने के बाद आज भी वो रंग वैसे ही महफूज हैं। इंसान मिट्टी जैसी नापायदार चीज में भी अपने हमेशा जिंदा रहने वाले निशान छोड़ना चाहता है। वाकई। और फने तामीर की ऐसी ही ताकतवर कहानियों में हम एक मुख्तलिफ रूप साउथ अमेरिका में भी देखते हैं। गयाना के घने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में काटुरे फॉल्स, जो नियाग्रा फॉल्स से तकरीबन 4 गुना ज्यादा बुलंद है, लगभग 741 फीट, और पानी के हजम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल ड्रॉप आबशार। पानी अरबों साल कदीम चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है वहाँ। और इस आबशार का पानी आम आबशारों की तरह सफ़ेद या नीला नहीं है ना, इसका रंग बिल्कुल डार्क ब्राउन होता है, जैसे तेज उबली हुई चाय हो। सही कहा। उसकी वजह घने रेन फॉरेस्ट की नबातात हैं, जो गलती और सड़ती हैं तो उनके टैनिन्स पानी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ इकोसिस्टम इंतहाई नायाब है,
जिसमें चमकते हुए गोल्डन फ्रॉग्स यानी सुनहरी मेंढक पाए जाते हैं। और वहाँ की उन स्विफ्ट बर्ड्स का क्या कहना, जो अपनी परवाज से उस 700 फीट गिरती हुई पानी की धार को चीर कर उसके बिल्कुल पीछे बनाए गए गारों में अपने घोंसले बनाती हैं। एक आबशार के दहाने पर जिंदगी अपना घर बना रही है। और कुदरत तो अपने असबाब पैदा करती है, लेकिन जब इंसान इन आतिशफशानी या कुदरती ताकतों से टकराता है तो और भी हैरान कुन चीजें वजूद में आती हैं, जैसे इटली का कैस्टेलो एरेगॉन। कैस्टेलो एरेगॉन ये तो एक आतिशफशानी चट्टान पर तामीर किया गया अजीम किला है। 15वीं सेंचुरी में जब इसको वसी किया जा रहा था तो उन्होंने मैग्मा रॉक यानी चट्टान के सीने में से ही सुरंग खोद डाली थी ताकि समुंदर के रास्ते से किले तक रसाई हो। और इस किले की चार दीवारी में एक ऐसी दफन तारीख है जो किसी हॉरर मूवी का सीन लगती है। वहाँ जो नन्स यानी ननों का तबका रहता था, उनके लिए तहखाने में मखसूस जगह थी जिन्हें पुट्रीडेरियम्स कहा जाता था। हाँ, ये पत्थर की बनी हुई सतें थीं। किसी नन के मरने के बाद उसके मुर्दा जिस्म को वहाँ बिठा दिया जाता था ताकि वो कुदरती तौर पर गले सड़ें, और बाकी जिंदा नन्स वहाँ आकर इबादत करती थीं ताकि उन्हें मौत और फना होने का तसव्वुर याद रहे। एक आतिशफशानी चट्टान पर इंसान मौत को कितने करीब से देख रहा था। ये उस दौर के अकायद का एक इंतहाई तारीख हिस्सा था। लेकिन मौत और तारीकी के इस किले के बिल्कुल बरक्स इंडिया का मयाकी आमन टेम्पल एक रोशन शक्ल पेश करता है, कदीम ड्रेविडियन आर्किटेक्चर का शाहकार। बिल्कुल, इस मंदिर का जुनूबी मीनार 171 फीट ऊंचा है और इस अमूदी सतह पर 33,000 से ज्यादा खुदी हुई मूर्तियां हैं। सब रिवायती और शोख रंगों में सजी हुई हैं। और उसके अंदर जो हॉल है, जिसमें 985 पत्थर के बड़े सुतून हैं, उनकी तरतीब इतनी बारीक बीनी से की गई है कि अगर आप किसी भी कोने में खड़े होकर देखें तो सारे सुतून एक परफेक्ट सीधी लाइन में नजर आते हैं। ज्योमेट्री और पत्थर तराशने का एक कमाल इम्तिजाज। हमने आज जितनी भी मुकामात पर गौर किया है, उनसे एक चीज वाज़ेह होती है। इंसान चाहे 171 फीट ऊंचे पत्थर तराशे, समुंदर के बीचों बीच आतिशफशां पर किला बनाए या 15,000 फीट की बुलंदी पर आधी ऑक्सीजन में इबादत करे, वो दरअसल इस कुदरत के सामने अपनी मौजूदगी को मुस्तकिल करने की जद्दोजहद कर रहा है। बेशक हम अपने असर और अपने निशान को हमेशा के लिए कायम रखना चाहते हैं। और इसी लाफानी निशान छोड़ने की गुफ्तगू के साथ हमारा आज का ये तफसीली सफ़र इख्तिताम की तरफ बढ़ता है। हमने देखा कि दुनिया किस कदर पुरस्रार और हैरातों से भरी हुई है। 13,000 फीट पर मौजूद मिट्टी के मीनारों से लेकर 8 लाख टन मछलियों को बचाने वाले अकायद तक इंसान और कुदरत के इस मिलाप ने ऐसी कहानियां तराशी हैं जो हमारी सोच को वुसअत देती हैं। दुनिया राजों से भरी हुई है, बस समझने वाला जहन चाहिए। इस सफर को समेटते हुए मेरे जहन में एक बड़ी चुभने वाली सोच आती है। आज हमने देखा कि हजारों साल पुराने मिट्टी के किले और आतिशफशानी चट्टानों पर बनाए गए रास्ते सदियों तक खड़े रहे और आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने उन्हें तब्दील किया। तो सवाल ये बनता है कि हमारी इस जदीद और डिजिटल दुनिया का वो कौन सा एक ठोस निशान होगा जो आज से 3,000 साल बाद आने वाली नस्लें जमीन पर देखेंगी। क्या वो हमारी क्लाउड स्टोरेज और डिजिटल कहानियों को समझ पाएंगी, या हमारा ये पूरा जदीद दौर आने वाले वक्तों के मिट्टी और बर्फ के जखीरों के नीचे हमेशा के लिए गुम हो जाएगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गौर जरूर करना चाहिए।